वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में। वेलकम अगेन टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स, योर कंप्लीट गाइडेंस टू स्टॉक मार्केट। Garner the knowledge in this video as we believe that learning is earning. We will begin the step 2 or the part 2 of this 2-part series. In this video, you will be learning about the pre-market session in details, how the equilibrium price is reached or the opening price of the stock is reached in the pre-market session. We will also learn in details about the post-market session. Thank you for your patience, as patience is a key in the stock market. स्टॉक मार्केट के लिए पेशेंस की होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम आभार है आपके कि आपने इतना पेशेंस शो किया। What we have learned, let's recapitulate that what we have learned in the part 1 of this 2-part video series on SGX Nifty pre-market session and post-market session. We learned about SGX Nifty, how it works, SGX Nifty कैसे काम करते हैं, its timings and impact of it in the Indian stock markets. उसकी जो impact Indian stock market में पड़ता है उसके बारे में हमने जाना और हमने pre-market session के बारे में भी थोड़ा सा जाना। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, please go and watch it. So sit back and relax and enjoy the video and gather the information, because this information will be very vital in your long run. Don't skip the video and watch, as if you skip the video you will miss out on very valuable information। और समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते हैं, और आप अगर स्किप करके देखोगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है, क्योंकि काफी सारा इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे। Watch till the end and there you will find that you have learned a lot more things. So it's time to start, friends, with the part 2 of this 2-part series on pre-market session and post-market session. So let's dive in, friends. Enjoy the video and garner the knowledge which will help you in future. Now let's take an example. Suppose a particular share at rupees 103, there is a buy order of 30,500 quantity and there is a sell order of 11,500 quantity. Or at rupees 104, there is a buy order of 9,500 quantity and sell order of 9,800 quantity. At rupees 105, there is a buy order of 12,000 quantity and a sell order of 15,000 quantity. At rupees 106, there is a buy order of 6,500 quantities and a sell order of 12,000 quantities. At rupees 107, there is a buy order of 5,000 quantities and a sell order of 12,500 quantities. And at rupees 108, there is a buy order of 4,000 quantity and a sell order of 8,500 quantity. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। 103 रुपए से 108 रुपए तक, मतलब 103, 104, 105, 106, 107 और 108 रुपए में काफी सारे बाई और सेल ऑर्डर्स प्री मार्केट में 9 बजे से 9-7 के बीच डाला जाता है। So ये सारे प्राइसेस है जिसमें कि people are ready to buy at a certain price and sell at a certain price.
तो फिर ओपनिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, इसको समझते हैं। तो 108 रुपीज में 4000 बायर रेडी है बाय करने के लिए। सो द डिमांड इज 4000 शेयर्स एट ₹108 एंड एट 107 रुपीज 5000 शेयर्स बाय करने के लिए लोग रेडी है। सो द डिमांड इज 5000 शेयर्स एट ₹107। और अब ध्यान से सुनिए, जो 107 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है वो 108 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है वो 107 रुपए में भी बाय करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि सबको सस्ता खरीदना है। When somebody is ready to buy at 108 when he is offered the price at 107, he will be always ready to buy because he is getting a cheaper rate. So the total demand at ₹107 is 4000 shares plus 5000 shares equal to 9000 shares. 9000 shares क्यों? 108 रुपए का 4000 shares और 107 रुपए का 5000 shares जो buy orders था। So the total demand at 107 rupees is 9000 shares. At 106 rupees, the total demand is 6500 shares. मतलब 106 रुपए में 6500 शेयर्स बाय करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। पर जो 108 रुपए में खरीदना चाहते हैं वो 107 रुपए में भी खरीद लेंगे और 106 रुपए में भी खरीद लेंगे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, he can buy cheaper. So the total demand at 106 rupees is 4000 shares जो कि 108 का डिमांड था, 5000 शेयर्स जो कि 107 रुपए का डिमांड था, प्लस 6500 शेयर्स जो कि 106 रुपए का डिमांड। So the total demand at 106 rupees is 15,500 shares. And so on. The total demand of buying of shares at 103 रुपए 103 rupees में होता है 13,500. So we can get the demand side कि सबसे lowest price जो है 103 rupees, उसमें total demand of buying shares is 13,500. अब दूसरे एंगल को देखते हैं। सो जो 108 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है वो 107 में भी खरीदने के लिए तैयार होगा, 106 में भी खरीदने के लिए तैयार होगा, 105 और 104 और 103 में भी खरीदने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसे सस्ता मिल रहा है। So therefore the total demand at the lowest priced offer, that is 103, is sum of all the buying demands from 108 rupees to 103 rupees, which is about 50,500 shares. अब ऑपोजिट साइड देख लेते हैं, मतलब सेल साइड भी देख लेते हैं। The supply at ₹103 is 11,500 shares, जो कि इस 103 पे पहले सेल करने के लिए रेडी है, वो 104 में भी सेल करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ही इज गेटिंग मोर मनी एट द टाइम और उसका मोटिव ये है टू सेल हायर। The supply at 104 is 11,500 plus 9,800 shares, जो कि होता है 21,300 शेयर्स। और ऐसे ही at 108 rupees the supply is 8,500, जो कि 103 रुपए में सेल करने के लिए रेडी है, वो आराम से 108 में भी सेल करेगा, क्योंकि उसे 5 रुपए ज्यादा मिल रहा होगा, मुनाफा होगा। So therefore the supply at 108 is total of from 103 to 108 rupees, that is 69,100. तो हमें इस एग्जाम्पल से एक चीज पता चला कि 103 रुपए में द डिमांड इज अबाउट 50,500 शेयर्स और 108 रुपए में द सप्लाई इज 69,100 शेयर्स। अब NSE कैलकुलेट करेगा कि कौन सी प्राइस में
the maximum amount of shares can be transacted, और वही होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है दोस्तों, and once this is done, और जब ये हो जाता है, wherever there is a possibility of maximum transaction, and that is taken as the opening price or the equilibrium price. So at 103 rupees the total demand is 50,500 and the supply is only 11,500. तो कितना शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है इस 103 रुपीस में? सिर्फ 11,500 शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि 11,500 का सप्लाई है और जो कि डिमांड से काफी कम है। डिमांड है 50,500 का और सप्लाई है सिर्फ 11,500 का। मतलब बायर्स at 103 rupees is 50,500 and sellers at 103 is 11,500. अब at 104 rupees the buyers there are 37,000 shares and the sellers are there for 23,300 shares. So the demand is again much higher than the supply. So only 21,300 shares can be transacted. ट्रांजैक्शन हो सकता है क्योंकि 23,300 शेयर्स के लिए सप्लाई है और उसी सप्लाई पे ट्रांजैक्शन हो सकता है क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। At 105 the buyers are 27,500 shares which is the demand and the sellers are at 37,500 shares which is the supply. So at rupees 105 for the first time the supply is more than the demand. So the maximum shares that can be transacted at rupees 105 is 27,500 which is the demand. क्योंकि डिमांड है 27,500 शेयर्स का और सप्लाई है 37,500 शेयर्स का। तो इस भाव पे मतलब 105 रुपए पे 27,500 शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है। At the same time you will see that the shares can be transacted at 106, 107 and 100 rupees are much less than 105. So the outcome that comes that 105 रुपए में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकता है जो कि 27,500 shares. So therefore 105 rupees is considered as the opening price or the equilibrium price for that particular stock क्योंकि 105 रुपए में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल और इसी शेयर का ओपनिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस 105 रुपए होगा। अब 103 रुपए से लेके 108 रुपए का भाव देख सकते हैं परमानेंट प्री मार्केट में, बट द ओपनिंग प्राइस इज कंसीडर्ड एट 105 क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज पॉसिबल। सो ऐसे ही प्री ओपन सेशन कंडक्ट होता है। ओपनिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर एंड इंडिसेस आर डिसाइडेड एंड everything is computerized and automated. सब कुछ ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड होता है और 9/15 को इस पर्टिकुलर शेयर का 2,500 शेयर्स विल बी ट्रांजैक्टेड एट द प्राइस ऑफ 105 रुपीज और बाकी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। होप आपको समझ में आया कि आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट डाल रखा हूं इस प्राइस एक्शन के ऊपर जो कि अभी थोड़ा आप स्टडी कर लो। इसी के बारे में हम लास्ट 5 मिनट से एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। कुछ सवाल है मन में, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वी विल डेफिनेटली एंटरटेन योर क्वेरीज एंड कमेंट्स। ये ऑर्डर मैचिंग सेशन होता है 9:08 से 9:12 तक। ये 4 मिनट का जो टाइमिंग होता है, दिस प्रोसेस इज बिल्कुल ऑटोमेटेड और वी कैन गेट द ओपनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस और इसी दौरान डिसाइड होता है किसी भी स्टॉक का ओपन प्राइस क्या होगा। तो उसके बाद 9:12 से 9:15 तक होता है बफरिंग टाइम जो कि 3 मिनट का लगभग होता है।
और 9:15 को जब मार्केट खुलता है ट्रेडिंग के लिए, जो कि दोपहर को 3:30 बजे तक चलता है। और होप यू गाइस now get a clear idea about the pre-market session, what is its timing, how it is divided into 3 small sessions, और ऑर्डर मैचिंग कैसे होता है, ओपनिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होता है। अब हम आते हैं पोस्ट मार्केट सेशन में, जो कि मार्केट खत्म होने की 10 मिनट बाद, मतलब 3:30 बजे के 10 मिनट बाद 3:40 पे शुरू होता है और 4 बजे बंद होता है। इसको बोलता है पोस्ट मार्केट सेशन। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सो व्हाट इज पोस्ट मार्केट? 3:30 के बाद जब शेयर मार्केट अपना शटर डाउन कर देता है, मतलब कि ट्रेडिंग बंद हो जाता है फॉर द डे, और 3:30 से 3:40 तक टाइम होता है क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे कि जो शेयर 3:30 बजे को जो भाव होता है वो 3:40 को चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था प्री मार्केट सेशन में, जो कि ओपनिंग प्राइस की कैलकुलेशन होता है, ठीक उसी तरह कैलकुलेशन होता है क्लोजिंग प्राइस का 3:30 से 3:40 के बीच। और हमारा जो पोस्ट मार्केट सेशन होता है या पोस्ट क्लोजिंग सेशन, वो होता है 3:40 से 4 बजे तक। 20 मिनट का ये सेशन होता है। यहाँ पे हम CNC ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। इन 20 मिनट में, मतलब जो पोस्ट मार्केट सेशन 3:40 से 4 बजे तक होते हैं, इसमें हम CNC ऑर्डर्स डाल सकते हैं। CNC मतलब कि कैश एंड कैरी। तो आप डिलीवरी ऑर्डर्स डाल सकते हैं बाय साइड पे एज CNC ऑर्डर इन द पोस्ट मार्केट सेशन, पर इसके लिए सेलर मौजूद होना चाहिए। सो देयर शुड बी सेलर्स टू सेल द शेयर व्हिच यू वांट टू बाय। जबकि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी तय हो चुका है, और उल्टा भी हो सकता है। अगर बायर्स मौजूद है और आपको लगता है कि स्टॉक और भी गिरेगा, तो यू कैन सेल योर शेयर्स बाय CNC ऑर्डर्स, तो ताकि अगले दिन आपको घाटा कम हो और ये क्लोजिंग प्राइस पे ही सेल होगा। पर शर्त ये होता है कि बायर्स होना चाहिए जो शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 100 शेयर्स का सेल करना चाहते हो, तो उसको खरीदने के लिए भी 100 बायर्स का रहना जरूरी होता है, तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या जितना बायर्स रहेगा उतना एग्जीक्यूट होगा। सोचिए, अपने 100 शेयर CNC ऑर्डर में सेल करने के लिए डाल दिया, लेकिन सिर्फ 30 बायर्स या 30 बायर्स है, तो आपका 30 शेयर का सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाकी 70 शेयर्स वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। होप आपको CNC ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट मार्केट में जो लागू होता है, बाय या सेल के लिए डाला जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मार्केट 9:15 से 3:30 तक 6 घंटा 15 मिनट ओपन रहते हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द पोस्ट मार्केट सेशन फ्रॉम 3:40 PM to 4 PM फॉर अबाउट 20 मिनट्स? इसका ओरिजिनल इंटेंट फॉर पोस्ट मार्केट सेशन is to give grace time to traders who had made some mistakes. जो ट्रेडर्स ने कुछ गलती की है अपने ऑर्डर्स में, उसको सुधारने के लिए पोस्ट मार्केट सेशन 20 मिनट का होता है, जो कि 3:40 से 4 बजे तक होता है। जैसे कि किसी ने इंट्राडे मार्जिन यूज करके बहुत सारे शेयर्स खरीद ली, लेकिन उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, सो ही कैन एडजस्ट हिज पोजीशन इन द पोस्ट मार्केट सेशन। नहीं तो ब्रोकर खुद ही उसका पोजीशन अगले दिन काट देगा। और किसी ने इंट्राडे में सेल कर लिया और उसके दिमाग में वो शेयर्स नहीं है, तो इंट्राडे के नियम अनुसार अगर आपने पहले सेल किया है तो उसे बाई बैक करना है, और वो बाई बैक करना भूल गया या किसी कारण चूक गया उसको बाई करने के लिए 3:30 के पहले, और उन ट्रेडर्स ने उसको बाई नहीं किया
post market session में they can square it up or buy it up and close their position. But it is only possible, ये मुमकिन तभी है जब opposite side में buyers या sellers रहे. अगर आपको सेल करना है तो there should be buyers for it to buy the shares, and अगर आपको buy करना है तो there should be sellers to sell the shares in the post market session, and ये vice versa होता है. और ये सिर्फ कैश मार्केट के लिए ही होता है, और डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस में नहीं होता है. आप कैश सेगमेंट में गलती सुधार सकते हो, लेकिन नॉट इन डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स या ऑप्शंस में. सेकेंडली, लोग पूछते हैं कि कैन आई प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर्स? द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो. स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इंट्राडे के लिए बनते हैं. वो इंट्राडे ऑर्डर्स होता है जो कि 3:30 पे जब हमारे मार्केट क्लोज होता है तभी वो कैंसिल हो जाता है. सो यू कैन नॉट प्लेस एनी इंट्राडे ऑर्डर्स लाइक स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, MIS ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स. इन सब के बारे में किसी वीडियो में हम बारीकी से चर्चा करेंगे. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो में आपने जाना कि SGX निफ्टी के बारे में ये क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ SGX निफ्टी, मॉर्निंग सेशन मतलब टी सेशन और इवनिंग सेशन मतलब T1 सेशन क्या होता है, हाउ इट अफेक्ट्स द इंडियन मार्केट इन द ओपनिंग, और क्या हम SGX निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, इनके बारे में you learned about the pre-market session, its timing, how the opening price or equilibrium price of a stock is decided, and you learned about the post-market session too. Hope this video was interesting and very informative. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपकी लाइक gives us a lot of motivation. If there is any query or question, comment section में comment कीजिए. We will definitely entertain your query and revert back as soon as possible. Please do subscribe our channel to get more information and more informative videos and learn about the stock markets. Press the bell icon दबा दीजिए so that जब भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए. Share the video with like-minded people who are interested in learning about the stock or share markets, and it will help us to grow to and reach to maximum people who are interested in the market. So thank you friends, thank you for watching. Hope you all stay well and trade well till we come up with the next video. Thanks a lot again. Goodbye. To change up.